پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ملاقات کی اور اس بعد یہ طے پایا گیا کہ آئندہ جو 56واں یوم تاسیس ہوگا وہ کوئٹہ میں انشاءاللہ اس کا پروگرام مرکزی پروگرام جو ہے وہ کوئٹہ میں منعقد ہوگا۔ تو میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اور پورا بلوچستان کی تنظیم اور اپنے مرکزی قیادت اپنے سارے عہدیداران کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب آصف علی زرداری صاحب کا، ادیب فریال کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لیڈرشپ نے اس دفعہ یہ موقع بلوچستان کو دیا اور یہ کوئٹہ کو دیا۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری دوبارہ ادی کے ساتھ میٹنگ بھی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ 30 نومبر کو یوم تاسیس کوئٹہ میں منایا جائے گا۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ چنگیز جان جمالی صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے دعوت دی ہے محترم بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان آنے کی، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی آپ کو بریف کر دیں۔ انشاءاللہ وہ 30 تاریخ کو ہمارا جو 56واں یوم تاسیس ہے اس کو ہم کوئٹہ میں انشاءاللہ عظیم الشان طریقے سے انشاءاللہ منائیں گے۔ اور ہم زیادہ بڑی بات نہیں کرتے ہیں، پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ اس کی آبادی ہے۔ ہماری آبادی چونکہ 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے، تو جو آبادی کا ہمارا ریشو ہوگا پھر آپ صحافی بھائی خود ہی فیصلہ کریں گے کہ پنجاب کا جلسہ بڑھاتا یا بلوچستان کا بڑھاتا، کیونکہ وہ آبادی کا ریشو بھی دیکھنا ہے اور شہر بھی دیکھنا ہے۔ وہاں پر لاہور جو ہے وہ 1.25 کروڑ سے بھی بلکہ زیادہ کا جو ہے شہر ہے، اور کوئٹہ جو ہے وہ 25 لاکھ کا جو ہے ایک شہر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ اس دفعہ اپنے بلدیاتی الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ نمبر پہ جو ہے آئی ہے، فرسٹ نمبر پہ بلوچستان میں آئی ہے۔ تو آنے والے الیکشن کی بھی ہماری تیاری یہی ہے کہ ہم شروعات اپنے ایسے سمجھے کمپین کی جو ہے شروعات جو ہے وہ ہم بلوچستان سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آنے والے وقت میں ہم اس دفعہ بلوچستان سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اس کا جیت سندھ سے اور بلوچستان سے اور باقی صوبوں سے بھی ہوگا۔ لیکن جس طرح ہم عوام کا رخ دیکھ رہے ہیں، عوام کا مزاج دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا مزاج جو ہے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور آنے والے جنرل الیکشن میں انشاءاللہ ہمیں تو توقع یہی ہے کہ وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو، جناب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی کو اور ان کے بیٹے کے پارٹی کو اس دفعہ بھاری اکثریت سے بلوچستان سے کامیاب کرائیں گے۔ شکریہ جی۔ شروعات ہوئی تھی۔ پارٹی کے پاس کیا ایسا پلان ہے بلوچستان کے جو سلگتے اور مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے، کیا ویژن ہے، کیا ایک مطلب؟ وہ ابھی تو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ جس دن چیئرمین صاحب جو ہے وہ اپنی اسپیچ کریں گے تو اس میں جو ہے اپنے اسپیچ میں جو ہے سارے بلوچستان کے جو مسائل ہے اس پہ تفصیلاً وہ جو ہے تفصیلاً اس پہ بات کریں گے، اور جو ہمارا چیئرمین صاحب کا بیانیہ ہے وہ اس پہ بیان کریں گے۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں پہلے تو پیپلز پارٹی کا 2013 میں اور 18 میں وہ نہیں ہوا،
2008 میں بی بی شہید کی شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے حکومت وہاں پر بنائی، لیکن اس دفعہ بنے گا تو مخلوطی حکومت۔ بلوچستان کا تو 70 سے جب سے صوبہ بنا ہے کلچر ہی ایسا ہے کہ وہاں پر ایک پارٹی کی وہ نہیں بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے مسلم لیگ کا 2013 میں سنگل لارجسٹ میجارٹی پارٹی بنی تھی، اس دفعہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سنگل لارجسٹ میجارٹی پارٹی پیپلز پارٹی بنے۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتا دیں کہ ایک یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے تمام تر مسائل کے ذمہ دار جو ہے وہاں کا سرداری نظام ہے، تو عام آدمی کی پسماندگی کو آج تک سرداری نظام نے یا آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ خود ایک سردار قبیلے کے، آج تک کیوں ایڈریس نہیں کیا؟ وہاں بلوچستان جو ہے آج بھی پسماندہ کیوں ہے؟ اس میں تو صداقت نہیں، آپ میرے حلقے میں جائیں، میرا حلقہ زہری کا حلقہ ہے جہاں اور بھی بہت سارے اس میں علاقے لگتے ہیں، آپ میرے حلقے میں جائیں، وہاں پر کالج بھی آپ کو ملیں گے، وہاں پر ہاسپٹل بھی آپ کو ملیں گے، وہاں پر جو ہے وہ خضدار میں نے بہت بڑی ایک یونیورسٹی بنائی ہے شہید سکندر یونیورسٹی کے نام سے، اور ہر جگہ جو ہے وہ یہ ہے امپریشن اسلام آباد کی۔ اسلام آباد مکران آپ کے سامنے ہے، مکران میں ہم نے بنائی ہے یونیورسٹی، وہاں پر بنائی ہے، وہ مکران میں جو ہے وہ میڈیکل کالج بنائی ہے، خضدار میں میڈیکل کالج بنائی ہے، یہ میرے اور ڈاکٹر مالک کے دور میں بنے ہیں جب ہم چیف منسٹر تھے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ اسلام آباد کی جو ہے وہ ہے، فنڈ نہیں دیتے ہیں لوگوں کو، جو ہے ترقی دینا نہیں چاہتے، اور سارا ملبہ جو ہے وہ سرداروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور سردار جو ہے ہم ترقی پسند سردار ہے۔ میرا جب میں چیف منسٹر تھا تو میرا ویژن ہی تھا کہ پڑھا لکھا خوشحال بلوچستان، پڑھا لکھا خوشحال بلوچستان، اور میں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ میں نے یونیورسٹیاں بنوائی ہے، میں نے کہا عرض کر رہا ہوں، میں نے میڈیکل یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہے اور بہت سارے وہ گیا، لیکن جب یہ اسلام آباد میں لوگ آتے ہیں تو یہ ایک ادری سے بیٹھ کے جو ہے وہ میزائل چلا دیتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کے جو ہے سردار کس نے آ کے جہاں وہاں پر جو ہے کولو میں کس نے کہاں پر جو ہے، ابھی جنرل صاحب بھی آپ سے بات کریں گے، کس نے جو ہے وہ خضدار میں یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی، کون سے سردار نے ان کو روکا ہے؟ صرف ادھر اگر بدنام ہے تو 3 سردار بدنام ہیں، ان کے نام نہیں لوں گا میں لیکن وہی ہے، باقی سب سردار جو ہے ہم خود ترقی پسند سردار ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کو، اب جنرل صاحب سے بات کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی غلط تاثر ہے جو کہ دیا جا رہا ہے بلوچستان کے ترقی سے متعلق۔ میں لاجیکلی ابھی آپ کے سامنے اس کو ثابت کروں گا، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو صحیح طور پر کور کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بلوچستان کے اس وقت 20 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، مہربانی کر کے بلوچ بیٹھا ہوا ہے مجھے بتا دیجئے گا کہ 20 ممبروں میں سردار کتنے ہیں؟ اس کے بعد اس سے پہلے 2013 میں قومی اسمبلی تھی، کتنے سردار تھے؟ 2008 میں ہماری قومی اسمبلی تھی، کتنے سردار تھے؟ اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کو بھی لے لے، 65 کی وہاں پر ٹوٹل نفری ہے، 65 ممبروں میں سے کتنے سردار ہیں؟ جہاں تک قومی اسمبلی کا تعلق ہے 2 مرتبہ میں ممبر رہا ہوں، 2 سے 3 سردار بھی نام کے۔ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا آپ کا ٹائم لینے کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اور اسی طرح سے صوبائی لیول پر بھی نام کے سردار ہیں، کچھ 3-4 رہے ہیں، لیکن 65 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے، 58-7 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے، 20-3 کے مقابلے میں 2 کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہونا چاہیے، پہلی بات۔ تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ دوسری بات، یہ جو اسلام آباد سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 سرداروں کے نام لیے جاتے ہیں۔ ہمارے سرداری نظام میں یہ میرے سردار ہیں، ان کا علاقہ زہری ہے، اگر ٹرائبل پوزیشن ہے ان کی تو زہری قوم سے باہر نہیں ہونا چاہیے ان کو، لیکن یہ پورے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 22 ممبر کی ڈائریکٹ ان کو سپورٹ تھی اپنی پارٹی کی جس وقت انہوں نے حکومت کی، اس کے علاوہ 7-8 اور مل کے انہوں نے حکومت بنائی 32-33 کر کے۔ تو یہ سرداری کی وجہ سے یہ چیف منسٹر نہیں بنے تھے، ان کے سرداری کی وجہ سے اتنے اپنے حلقے میں 2 سے 3 ممبر صوبائی کے، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 قومی اسمبلی کے نکال سکیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی بات کی جاتی ہے
उसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करूँगा। उनमें उनका इन्फ्लुएंस है, अमन व आमा में उनका ताल्लुक है, उनका है इसलिए कि वो एक सियासी कमीज़ वो पहनते हैं। सियासी कमीज़ पहनने की वजह से हर कबीले में, हर कौमियत में, हर इलाके में थोड़ी बहुत उनकी फॉलोइंग है। अच्छा बुरा कोई बड़ी फॉलोइंग आज तक उनकी सामने नहीं आई है। 65 की फिगर में कभी भी वो 10 तक नहीं पहुंचे हैं, कोई भी उनमें से मिलके किसी पार्टी का मुझे बता दे, बैठे हुए यहाँ पर, ऐसी बात कोई नहीं है। और उनको भी अगर देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए, तो उनके भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ से या डेरा बुगटी है फॉर दैट मैटर, या कोलू है, या वड है, खुशदार तो इनका है, वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो जंगल बन गया, फलान हो गया, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ पर भी इतने स्कूल हैं, इतने हॉस्पिटल जितने किसी और जगह में है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत तसर दिया जा रहा है अपने ये इस्लामाबाद का एक क्लिक है ब्यूरोक्रेट्स का, और ये 75 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई आए, खारान में कोई सरदार नहीं है, मखरान में कोई सरदार नहीं है, चागी में कोई सरदार नहीं है, नोशकी में कोई सरदार नहीं है, नसीराबाद में कोई सरदार नहीं है, पश्तून एरिया में कोई सरदार नहीं है। किधर गई इनकी तरक्की? सनाउल्लाह खान, नवाब सनाउल्लाह खान अगर तरक्की को रोकता है तो ज़हरी में रोकता है। डेरा बुगटी एक जिला है, डेरा बुगटी एक जिला है, उसका ज्यादा डेरा बुगटी है। कोलू जो है, कोलू में तो उसका असर नहीं है। कहान एक तहसील है, वड एक तहसील है, ठीक है ना जी। तो ये जो चीज़ें आपको मैं क्लियर करने को मैं आपको एक बात बताना चाहिए, सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको फिर चीज़ सब। मैं और नवाब सनाउल्लाह खान ने नवाज शरीफ की पार्टी को आज से 3 साल पहले छोड़ा। जनरली बलोचिस्तान में तरीका ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वहाँ पर बलोच प्रेसिडेंट बना लेते हैं, पश्तून जनरल सेक्रेटरी बनता है किसी भी पार्टी का, ये जनरली इसी तरह किया जाता है। और इस पार्टी को 3 साल के अरसे में एक बलोच आज तक प्रेसिडेंट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। अभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके साथ शामिल हो जाएंगे, ये कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर इस पार्टी की ऐसी इन्फ्लुएंस थी, ऐसी पॉपुलरिटी थी, ऐसे लोग उसके लिए बेहोश हो रहे थे, जैसे कि अभी तासुर दिया जा रहा है 14 तारीख को, तो कम से कम एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ओहदेदार तो करते। एक बात कहूँगा नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ ने कहा था कि ये लोगों को इन्होंने बाप बनाया है, इनको मैं कभी अपनी पार्टी में नहीं लूँगा। तो मैं क्या कहूँ अभी मियाँ साहब को कि वो थूक के चाटने वाली बात है। इंशाल्लाह जी हम 30 तारीख को, 30 नवंबर को यौम तासीस को भरपूर तरीके से कोयटा में इंशाल्लाह कामयाब करेंगे और बलूचिस्तान की आवाम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कोयटा में इस्तकबाल करेगी, खुशामदेद कहेगी और हम इंशाल्लाह वहीं से हमारा इलेक्शन की कैंपेन होगी। और जैसे कि जरदारी साहब ने कहा है कि आने वाला वक्त में ज़ियाला वज़ीर आला बलूचिस्तान का होगा और इंशाल्लाह मरकज़ में हमारा प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। शुक्रिया जी। जी मैं एक मिनट मैं सिर्फ एक चीज़ की क्लियरिफिकेशन करना चाहता था। मैं सेनेटर साबिर बलोच जो मेरा नाम है, मैं फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन हूँ। आज हमारी मीटिंग हुई थी बीबी साहिबा के पास, अदी तालपुर के पास फरियाल के, वहाँ पर इस सिलसिले में एक कॉम्प्रीहेंसिव ले लिए गए, फैसले लिए गए। सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को उन्होंने कन्वीनियर बनाया कि ही इज़ द मेन सोर्स के हर कमेटी, प्रोविंशियल कैबिनेट, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट, डिविजनल कैबिनेट्स जितने भी हैं कोऑर्डिनेट करेंगे नवाब साहब के साथ। द मेन इशू इस वक्त ये है कि सरदार नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब इज़ द कन्वीनियर ऑफ द प्रेजेंट जो अभी जो इवेंट होने वाला है। थैंक यू। हाँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सादिक उमरानी, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। कल और आज 2 दिन हमारी पार्टी के इजलास होते रहे। पार्टी की ख्वाहिश पर, बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर इस साल हर साल की तरह जो पार्टी की यूम तासीस
मनाई जाती है। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, इस साल बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट। उनकी तंजीम की ख्वाहिश पे चेयरमैन साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल पार्टी का यूम तासीस 56 यूम तासीस कोयटा से मनाया जाएगा और कोयटा का जलसा इस साल 2023-24 की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कोयटा के जलसे से ही चेयरमैन साहब करेंगे। जैसे दोस्तों ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी आज से नहीं, बलूचिस्तान में 1970 से लेकर आज तक बारूद वजूद जब सूबा आया, इस सूबे की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट पीपल्स पार्टी ने दी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे मुख्तलिफ जगहों पे। और आज बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्की और जामा मनसूबा बंदी जो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दी, इससे पहले किसी भी हुकूमत में के दौरे हुकूमत में नहीं रही है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान इस साल पूरी ताकत का मुजाहरा करते हुए कोयटा से अपने इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ कर रहे हैं और यूम तासीस भी शानदार तरीके से कोयटा में मनाया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से तमाम सूबे के नज़रियाती फ़िक्री जियाले कारकुनों को, हमदर्दों को, वोटरों को से अपील करता हूं कि वो 30 तारीख को कोयटा तशरीफ़ लाएं, भरपूर तरीके से इस जलसे को कामयाब करें, पार्टी के यूम तासीस के जलसे को। इस सिलसिले में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद था पूरी सेंट्रल कमेटी बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई क़यादत नवाब सनाउल्लाह और दीगर दोस्त यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह आज ही से पूरे सूबे के अंदर हम लोग इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये तारीख़ी जलसा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम पर एक बोझ हैं। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दी। हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब होंगे और इस इंतखाब के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हमारी क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरीके से आसिफ जरदारी ने बहादुरी, एक बलोच की हैसियत से, एक वफादार साथी की हैसियत से, एक नज़रियाती लीडर की हैसियत से इस मुल्क के अंदर जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, इंशाअल्लाह उनकी जो विज़न है, उनकी सोच है, उस सोच को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया, हमारे सूबाई सदर ने और नवाब साहब ने और बाकी साथियों ने तकरीर की। मेरा नाम है रोजी खान काकड़, एक्स सेनेटर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी। इस टाइम पूरे मुल्क में तमाम आवाम की नजरें जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पे है, क्योंकि बाकी अगर नून हो या वो नए पाकिस्तान बनाने वाले थे, उन्होंने अवाम को मायूस किया। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। जब अब दोबारा ये लोग इलेक्शन में जाएंगे अवाम के पास, अवाम इनको वोट देंगे। इस टाइम मायूसी है। तमाम लोग, चाहे कारोबारी हजरात हो, चाहे मुलाजमीन हो, चाहे दूसरे लोग हो, उन सब की नजरें पाकिस्तान पीपल पार्टी पे है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथियों ने इतनी तैयारी की है कि इंशाल्लाह, क्योंकि जो पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन में ना हमारा कोई सूबाई एमपी था, ना एमएलए था, उसके बावजूद पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अव्वल पोजीशन हासिल की। 7 जिले जो है उनकी
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुंतखब हो चुके बल्दियाती में, तो इस दफा फिर आवाम पे जो है नजर पाकिस्तान पीपल पार्टी पे इंशाल्लाह चेयरमैन साहब आकर के वहाँ पे जो जलसा उसी जलसे से इंशाल्लाह इलेक्शन का आगाज होगा। तो इंशाल्लाह इस दफा बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो है इंशाल्लाह सूबाई सतह पे इंशाल्लाह सबसे ज्यादा सीटें पीपल पार्टी की होंगे और इंशाल्लाह पीपल पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाला गोलो, प्रेसिडेंट वुमेन विंग बलूचिस्तान। बग़ैर ख़ातून के ख़वातीन के हर चीज़ नामुकम्मल है। हम इस झंडे के नीचे इस बीबी के साथ हम ये अहद करते हैं कि हम अपने पार्टी में, हम बलूचिस्तान में जिस तरह से कल हमारे शहजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, आज हमारी अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें जिस तरीके से अभी तमाम चीज़ें बताई गई कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ हमारे मीर चंगेज़ खान जमाली हमारे प्रेसिडेंट, सब हम मिल के हम पार्टी को तमाम यूथ विंग, वुमेन विंग सब हम इकट्ठे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब हम अपना पार्टी को जो है एक कामयाब एक जलसा देंगे, जो एक हमारा मैसेज जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए यौम तासीस जो है ये हमारा आगे इलेक्शन का हमारा कैंपेन है। और ये हम इंशाअल्लाह ताला आज हम ये कहते हैं कि इस झंडे की हम साथ मिल के हम ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपना जलसा ऐसा जलसा करके दिखाएंगे जो पूरे चारों सूबों के लिए और पाकिस्तान में एक हमारा मुनफरद जलसा होगा इंशाअल्लाह। जाते जाते ये मेरा फ्लैग, हेलो ये मेरा फ्लैग 3 अच्छा क्या भेजा? अच्छा और हम इस तरह के अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल या सिंध या KPK या पंजाब में होगा तो इंशाल्लाह वो लोग 3 महीने पहले इस तरह तैयारी करेंगे। इस वजह से बलूचिस्तान का पॉपुलेशन कम है, मगर हम कितना ठीक है। कहाँ पे खड़ा है? कहाँ पे खड़ा है? दुनिया याद रखेगा। रह गया मियाँ का कानून 5 साल मुल्क से मस्जिद में नंबर उसका भेज देना, मैं खुद जा रहा हूँ अभी। आके बलूचिस्तान की बात ठीक है ठीक है, परवेज को बता दो करे। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब आसिफ जरदारी ने बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को खत्म करने के लिए हमें एमपी के मद में जो पैसे दिए, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं थे। नवाज शरीफ को तो बलूचिस्तान की कद्दावर शख्सियत का कदर ही नहीं है, जिस तरह नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने उसके मुर्दा पार्टी को जो जिंदा किया था और उसी को ही मार के इस तरफ 3-4 साल से आए। इंशाअल्लाह ताला मियाँ बलूचिस्तान आएगा और मायूस होकर चले जाएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। कौन से वजीर आला ने कहा था? अच्छा जाम कमाल जी जी जाम साहब तो चले वो बाप में अभी तक तो बाप में है वो जाम साहब। बाप अभी तक बाप उसने जाम साहब ने तो अभी बाप नहीं छोड़ा है मेरा ख्याल है, लेकिन अभी खालिद मक्सी साहब उनके प्रेसिडेंट बने हैं, सूबाई मरकजी प्रेसिडेंट बने हैं, एग्जिस्ट तो कर रहा है अभी तक बाप पार्टी वहाँ पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम मार्क्सिस पार्टी है, पीपल्स पार्टी का एक बुनियाद है शुरू से डे 1 से ही वो है। और मैं समझता हूँ कि बीबी शहीद जब थी उन्होंने पीपल्स वर्क प्रोग्राम 88 में बनाया है, उस वक्त से हम इलेक्टेबल थे। 88 में फर्स्ट टाइम जो है जो ज़ियाउल हक के मरने के बाद जो है वो
यहाँ पर इलेक्शन हुए थे तो उसमें बीबी शहीद वो बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उन्होंने पीपल्स वर्क प्रोग्राम दिया था। उसके बाद उन्होंने लेडीज़ के लिए जो है वो हेल्थ वो कार्ड दिया है। जितने यूनिवर्सिटीज़ बने हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने हैं। बलूचिस्तान में बोलान मेडिकल कॉलेज भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हुआ वहाँ पर, और पीपल्स पार्टी ने हर हमेशा कोशिश की है कि बलूचिस्तान के महरूमों को दूर किया जाए, हमेशा उसने कोशिश की है। बाकी लीडर साहिबान सुबह आते हैं और शाम को जो है, कभी आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ आया है तो वो वहाँ पर एक रात ठहरा है। अभी 6-16 महीने तक तो वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। तो बाकी भी जो भी प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में है जिन्होंने मज़े लूटे हैं 30-30 साल से, वो तो जस्ट वो आते थे इस बलूचिस्तान को एक वो हम तो सिंधी में और उसमें कहते हैं कि मेहमानी खाने के लिए आते थे। बाकी जो है वो उनको बाकी एक मिनट बलूचिस्तान के मसले मसाइलों से उनके कोई इंटरेस्ट नहीं था। और एक फॉर्मल जो है एक मीटिंग कर लेते थे मीडिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पर फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो है चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के जो है ये मीटिंग कर ली। बाकी अमल कुछ नहीं होता था, उस पर अमल कुछ नहीं होता था। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के दिल में बलूचिस्तान के लिए अवाम के लिए महकूम अवाम के लिए उसके दिल में दर्द है, हम चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है अवाम बलूचिस्तान के अवाम का जो हवा का रुख है, अब तबीयत है, हालांकि हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। हम मीडिया के सामने ये कहना नहीं चाहते हैं, हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन अवाम के ज़ोर पर हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन जीत के आएंगे। जी जी नहीं, नून को मैंने असूलों पर छोड़ा है। नून के लिए आखिरी दिन तक मैंने काम किया है। नून के बेटी आया है नवाज शरीफ का, उसका मैंने खुद ड्राइविंग किया है, ये गवाह है जनरल साहब। आखिरी 11th आवर पे वो मुझे कहते कि आप यहाँ पर आके स्टेज पर नहीं बैठ सकते। ये इंसानियत होती, ये कल्चर है हमारा सिंधी बलोचों का, हमारा कल्चर ये है। और वो कहते, मैंने कहा भाई चले आप उधर नहीं छोड़ते, मैं जलसे में तो आऊँ। कहते नहीं, आप के जो है वो बच्चों के जो कातिल है उनको एतराज़ है, इसलिए आप जलसे में भी नहीं आ सकते। आप ये सोचें, आप ये बताएं कि आप मेरी जगह आप हो, आप उस घर में रहेंगे, उस जगह जाएंगे आप? हमने असूलों पे हमने फैसला किया था कि हम नवाज शरीफ को जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ ने खुद हमें जो है वो धक्का दे के हमारे जो है वो जो है ज़बरदस्ती धक्का दे के हमें जो है पार्टी से अपने निकाला, तो उसमें फिर हम सियासत करते हैं, इज्जत के लिए करते हैं। हम बलोच है, सिंधी है, पठान है, सब इज्जत के लिए करते हैं। जब आपकी पार्टी का लीडरशिप आपको इज्जत न दे तो फिर आप क्या करेंगे? आप बैठे सहाफ़ी सब फैसला करें। अगर मैं मुजरिम हूँ, अगर मैं नहीं आया हूँ पीडीएम के जलसे में, आज भी ये साथी हमारे मौजूद है, बैठे हैं, इनसे पूछे, जितना भी क्राउड था मैं नहीं गया उसमें, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया था। जनरल साहब भी नहीं गया था, लेकिन जितना भी अयूब स्टेडियम को भर दिया गया था, जितना भी क्राउड था वो हमारे लोगों के लोग थे। उस वक्त क्या आप मुस्लिम लीगी कह सकते हैं, या उस वक्त के बलोच पश्तून कह सकते हैं उनको। मेरी सदारत में और जनरल साहब की सदारत में वो लोग आए हुए थे। तो इस तरह तो नहीं हुए। सियासत हर कोई देखे, सियासत एक असूल होता है, इक़्तिदार की सियासत नहीं होता है, असूल होता है सियासत की। और दूसरी बात यह कि सियासत का मतलब इज्जत कमाना होता है। सियासत का मतलब ये नहीं होता है कि बेइज्जती आप कमाएं। और वो जीटी रोड वाला आपको धक्के दे के उधर वो करे, आपका मुझे आप हिस्ट्री से पता है आपको, मेरी हिस्ट्री से पता है आपको। हाँ, मैं नवाब नवरोज खान का नवासा हूँ। हमने फांसी को
چوم کر ہمیں قرآن پر اتارا گیا، لیکن پھر ہم نے یہاں تک بھی نہیں کہا. ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے گلے میں وہ قرآن شریف لٹکا کے ہم گئے، پھانسی کے پندے کو چوما. ہم نے کہا قیامت والے دن ایوب خان پاکستان تم اللہ کے نام پہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس قرآن کے نام پہ پاکستان بنائے، قیامت والے دن ہم آپ سے فیصلہ کریں گے. ہمارا وہ ہے، ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں. جی بھٹو.